Hello kids, today we will study chapter number 7, division. Kids, in this chapter we are going to study about division. So let's start the chapter. First of all, look at this picture. On here, Raman has 15 oranges stored in 5 baskets. Raman ने 5 baskets में 15 oranges जो हैं वो store किए हैं. How many oranges must go in each basket? कितने ऑरेंजेस होने चाहिए? एक. ईच मीन्स एक बास्केट में. So what you will do for this? He starts by putting one orange in each basket. पहले वो हर एक बास्केट में एक एक ऑरेंज रखेगा. Now then he puts one more oranges in each basket. फिर उसके बाद एक एक और रखा चला जाएगा. Finally, he puts one oranges more in each basket so that no more oranges are left with him. फिर भी वन वन रखने के बाद फिर भी उसके पास 5 ऑरेंजेस और रह जाते हैं, तो उसके लिए वो फिर से एक एक ऑरेंजेस इन 5 बास्केट्स में फिर से रखेगा. तो उसने देखा कि हर एक बास्केट्स में कितने कितने हुए. दैट इज 1 2 3, अगेन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. इसका मतलब क्या हो गया? ईच बास्केट्स कंटेन 3 ऑरेंजेस. तो that means 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, what will become? That will become 3. Now kids, therefore that is number of oranges in each group, that is number of groups, and that is total number of oranges. Kids, therefore 15 oranges put equally in 5 baskets signify dividing 15 by 5 to get 3. That means, so we find a number to be put in each group. So kids, now let's start new topic, division as equal sharing. In this topic, division means क्या होता है? Division का मतलब होता है equal sharing. Now kids, suppose there are 8 apples in a tray. एक ट्रे में 8 एप्पल्स है एंड देयर आर 4 चिल्ड्रन वी गिव. और चिल्ड्रन कितने हैं? वो 4 हैं. तो वी गिव 1 एप्पल टू ईच चाइल्ड एज शोन बिलो. आप देख रहे हैं कि हर एक चाइल्ड के पास 1 एप्पल है. नाउ एप्पल्स आर लेफ्ट इन द ट्रे. 1 देने के बाद भी एप्पल्स रिमेनिंग है ट्रे में. नाउ व्हाट यू विल डू? अगेन वी गिव 1 मोर एप्पल टू ईच चाइल्ड. फिर से एक एक एप्पल और दिया जाएगा हर एक चाइल्ड को. अब एक भी एप्पल नहीं है ट्रे में. यू कैन वॉच. नाउ नो एप्पल्स आर लेफ्ट इन द ट्रे. This means that all the 8 apples have been shared equally by 4 children and each child gets 2 apples. Kids, division is equal sharing. We say that 8 divided by 4 is equal to 2. We write it as 8 divided by 4 is equal to 2. Kids, ये जो symbol है हमारा, that stands for division. Now 8 divided 4 is equal to 2 is a division fact. When we divide some things equally among a group, it is called equal sharing. Remember it. जब हम डिवाइड करते हैं इक्वली कुछ भी, when we divide something, तो equally among a group, it is called the equal sharing. On the base, we will start exercise 7.1. First step, fill in the boxes. On here, that is 15 toffees have been shared equally by 3 children. 15 toffees है और उनको equally divided किया गया है किसमें? 3 children में. Kids, each child gets. एक child ने कितनी टॉफी ली? You can watch on here. That is 1 2 3 4 5. On here, 5 toffees each child will be get. So, इसका मतलब 15 divided by 3 what will be? That is 5. Now remaining question you will do yourself. Now next topic, division as equal grouping. On here, look at this picture clearly. Ravi has 12 toffees. Ravi के पास में 12 toffees हैं और टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए.
He wants to give 3 toffees to each of them. वो हर एक को कितनी टॉफीज देना चाहता है? 3 toffees. Now, how many friends can he give the toffee? वो कितने फ्रेंड्स को टॉफी दे सकता है? On here, Ravi has 12 toffees. He keeps toffee in groups of 3. उसके पास 12 टॉफीज है, तो वो किस तरीके से रखता है उसको? 3 ग्रुप्स में. देखिए आप, that is 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3. He can put all the 12 toffees in 4 groups. ये 4 ग्रुप्स में है, to distribute among his friends. This इसका मतलब क्या हो गया? He can distribute 12 toffees among 4 friends, giving them 3 toffees. Kids, we represent this as 12. 12 को अगर हम डिवाइड कर दे 3 से, तो दैट विल बिकम 4. यानी कि अगर 3 टॉफीज वो हर एक को दे, तो उसके 4 फ्रेंड्स कैन टेक द टॉफीज. नाउ on the base we will start exercise 7.2. First, ring the object to share them equally. One has been done for you. देखिए, शेयर 8 आइसक्रीम्स का है बिटवीन 4 किड्स में. तो 8 आइसक्रीम्स को 4 किड्स में शेयरिंग करना है, तो हर एक किड विल बी टेक 2 आइसक्रीम्स. तो ईच किड गेट्स 2 आइसक्रीम्स. एज इट इज ऑन हेयर, प्लेस 12 वाटरमेलन इन 2 बास्केट्स. अब हमें 12 वाटरमेलन को 2 बास्केट्स में लेना है, और हमें पता है each baskets. For this, what will we do? We will do equally parts. There are 12. What you will do? 1 2 3 4 5 6. 6 watermelon will become 1 basket, and again 1 2 3 4 5 6. 6 will become second basket. So इसका मतलब each basket has 6 watermelon. As it is C, you will do yourself. Now next topic, division as repeated subtraction. Remember it, kids, division जो होता है वो repeated subtraction होता है. Now let us distribute 12 pencils equally into 4 pencil holders. अगर यहाँ पर हम 12 pencils को equally किसमें डिवाइड कर दे? 4 pencils holders में. तो what you will do? There are 12 pencils. पहले आप 12 में से 4 माइनस करेंगे, तो 8 पेंसिल्स रिमेन हो जाएंगी. फिर 8 में से अगेन 4 करेंगे, तो 4 पेंसिल्स रह जाएंगी. फिर 4 में से 4 करेंगे, तो दैट विल बिकम 0. इसका मतलब क्या हो गया किड्स? An equal number of pencils has been placed in each pencil holder. आपने देखा ये 3 स्टेप्स में जाकर रिमेन यहाँ पर 0 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है? आप क्या करेंगे? That means beginning with 12, 4 was subtracted repeatedly until 0 was left over. तब जब तक 0 ना आए तब तक हम स्टार्टिंग करते हैं माइनस करना. How many times was 4 subtracted from 12? That is 3 times. Repeated subtraction is written as a division fact as follow. जितने टाइम पर हमारा माइनस करके 0 आ जाता है, that will be the answer to divide. तो इसका मतलब 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, 3 will be come. Now kids, look at this. इसका मतलब ये हो गया ऑन हेयर 4. आप 4 पेंसिल होल्डर्स में 3 पेंसिल रखेंगे, तो वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगी. तो किड्स, each pencil holders contains 3 pencil. ये इस तरीके से आया है. We can show division as a repeated subtraction on a number line also. Observe the following. आप इसको ऑब्जर्व करें. हमें ये बताना है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में 18 divided by 3 is equal to 6. Start from 18. 18 से करिए आप स्टार्ट. पहले यहाँ पर हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया. 18 में से 3 माइनस किया, 15 आ गया. फिर 15 में से 3 करा, 12 आ गया. 12 में से 3 करा, 9 आ गया. 9 में से 3 करा, 6. 6 में से 3 करा, 3. 3 में से 3 करा, दैट इज 0. तो हमने देखा टेक जंप्स टूवर्ड्स द लेफ्ट. इन ईच जंप कवर 3 नंबर्स.
जब हम यहाँ पर जंप कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं वो 3 नंबर्स को कवर कर रहा है। पहले 15 पर आया, अगेन 12 पर, फिर अगेन 9 पर, फिर 6 पर, फिर 3 पर, फिर उसके बाद 0 कब आया है? 6 जंपिंग में। तो हाउ मेनी टाइम्स 3 हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18? क्लियरली 6 टाइम्स। तो इसका मतलब जब हम 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, दैट विल बिकम 6। As it is, example number 2, using repeated subtraction on the number line, divide 20 by 5. Kids, इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 में से पहले 5 माइनस करेंगे तो विल बिकम 15। तो नंबर लाइन पर पहले ये 15 पर आएगा। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10, यानी कि फिर ये 10 पर आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज 5, तो ये फिर 5 पर आ गया। फिर 5 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज 0। तो हमने देखा ये 4 स्टेप्स में 0 पर आ रहा है, ये दैट इज 0। तो इसका मतलब वी सी दैट 4 टाइम्स 5 हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 तो वी टू रीच 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, दैट विल बिकम 4। किड्स, ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड एंड फिल इन द बॉक्सेस। आपको 8 को डिवाइड करना है 4 से। What will become when you will divide 8 divided by 4? That will become, each 4 में डिवाइड अगर करेंगे that will be make 2. So on here will become 2 as it is। B देखें, that is 1 2 3 4 5 6 और किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे हाउ मच विल बिकम? दैट विल बिकम also 2 as it is remaining you will do yourself। now second देखें, use the number line to find the answer by repeated subtraction। kids, how you will do this? देखिए जरा, 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो पहले हम 8 में से 2 माइनस करते हैं दैट विल बिकम 6। फिर हम 6 में से 2 माइनस करते हैं दैट विल बिकम 4। 4 में से 2 डिवाइड करते हैं दैट विल बिकम 2। 2 में से 2 डिवाइड करते हैं दैट विल बिकम 0। तो 0 कितने टाइम पे आ रही है? दैट इज 1 2 3 4 टाइम्स पे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 8। तो पहले 8 से ये जाएगा, जंपिंग लेगा 6 पर, फिर ये 6 से जाएगा किस पर? 4 पर। देख रहे हैं आप सब्ट्रैक्शन में ये 4 है, 4 से ये 2 पर एंड देन विल बिकम 0। तो कितने स्टेप्स में आया ये आया है 4 स्टेप्स में। तो इसका मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 4। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देयर आर 2 डिवीजन फैक्ट। हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट्स हैं। देयर आर 3 बास्केट्स ऑफ 2 स्ट्रॉबेरीज ईच। हमारे पास 3 बास्केट्स हैं और उन 3 बास्केट्स में हर एक में 2 स्ट्रॉबेरीज हैं। दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। सिमिलरली 6 strawberries can be shared equally in 2 ways। First, 6 को डिवाइड कर दें अगर हम 3 से, दैट विल बिकम 2 एंड 6 को डिवाइड कर दें हम 2 से, दैट विल बिकम 3। तो डिवीजन फैक्ट इसके ये हो गए 2। एज इट इज सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40 होता है। यू कैन राइट 40 को डिवाइड कर दे अगर 5 से, दैट विल बी 8। 40 को डिवाइड कर दे 8 से तो दैट विल बी 5। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35 का देखें, पहले 35 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 7। एज इट इज 35 को अगर हम डिवाइड कर दे 7 से तो दैट विल बिकम 5। नाउ सिमिलरली एज इट इज 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27 का देखें, पहले हम 27 को डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो क्या मिल जाएगा? दैट विल बिकम रिमेनिंग 3। नाउ 27 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 से तो क्या मिल जाएगा? रिमेनिंग 9। तो यू कैन से
there is a relation between multiplication and division. Division using multiplication tables. Using multiplication tables, we can do division sums. How? Example number 3 देखें. Divide the following using multiplication. हम multiplication का use करके कैसे divide करते हैं? There are two questions, A and B. First A देखें. 10 को divide करना है 2 से. तो recall the multiplication table of 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10. Stop here. आपने देखा कि using the relation between division and multiplication, we know that 2 fives are 10. तो इसका मतलब क्या हो गया? जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, that will become 5, क्योंकि 5s are पर हमें 10 मिल रहा है. On here as it is this question, 18 को डिवाइड करना है 3 से, तो रिकॉल द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3. और जब तक हमें 18 ना मिल जाए, यू विल रिकॉल द टेबल ऑफ 3. तो हमने देखा 3 1s 2s 3s 4s 5s एंड 6 आर पर हमें क्या मिल रहा है? दैट इज 18. स्टॉप हियर. तो यूजिंग द रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, वी नो दैट क्योंकि 6 आर पर हमें 18 मिला है, तो वी कैन से 18 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 6. नाउ किड्स, टर्म्स ऑफ अ डिवीजन स्टेटमेंट्स. अब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ अ डिवीजन स्टेटमेंट्स. कंसीडर द डिवीजन स्टेटमेंट. व्हाट इज दिस? 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, विल बिकम 8. तो दैट विल बी डिविडेंड, दिस विल बी डिवाइजर एंड दिस विल बी कोशेंट. रिमेंबर इट. डिविडेंड क्या होता है? द नंबर वी डिवाइड इज द डिविडेंड. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दैट विल बी डिविडेंड. यहां पर 16 हमारा डिविडेंड है, इसलिए. डिवाइजर, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं दैट विल बी डिवाइजर. ऑन हेयर 2 इज डिवाइजर. नाउ क्वोशिएंट, द नंबर वी गेट एज द आंसर. जो हम आंसर लेते हैं दैट विल बी क्वोशिएंट. हियर 8 is the quotient. On the base, we will do exercise 7.4. Use multiplication tables to divide the following. पहला देखें, हम 2 का टेबल रिकॉल करेंगे जब तक हमें 12 नहीं मिलता. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. Stop. हमने देखा 6 आर पर हमें 12 मिल रहा है, तो इसका मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 6. एज इट इज. बी देखें, 21 को डिवाइड करना है 3 से. रिकॉल द टेबल ऑफ 3. और तब तक जब तक हमें 21 ना मिल जाए. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. Stop here. हमने देखा 7 आर पर हमने 21 लिया, तो 21 divided by 3 will be 7. As it is, remaining question you will do yourself. Now second, write division facts for each of these. Multiplication fact 1 has been done for you kids. On here हमें multiplication fact given है, आपको इससे 2 division fact लिखने हैं. जैसे पहले वाले में 2 multiply 9 is equal to 18 है, तो you can write is 18 divided by 2 is equal to 9 and 18 divided by 9 is equal to 2. As it is, 3 multiply 2 is equal to 6, so you can write 6 divided by 2 is equal to 3, and next 6 divided by 3 is equal to 2. Remaining question you will do yourself, that is the B. Now next topic, long division method. Consider the division statement 35 divided by 5 is equal to 7. So what you will do? You will recall the table of 5 until 35 will not become. हमने यहाँ पर रिकॉल किया 5 का टेबल और हमने देखा 5 7s आर पर 35 आया है. तो इसका मतलब what you will do? First of all, you will write like this type. 35 को डिवाइड करना है 5 से, तो हमने देखा 7s आर पर 35 आया है, तो 7 you will write on here
and product 35 will be right below of the dividend, and after that you will do minus. तो 35 में से 35 minus करोगे, that will be 0. Now kids, that is divisor, remember it. This will be the dividend and above that will be quotient, and minus करके जो digit आएगी that will be remainder. So kids, it is not as long division method as it is. एक और करते example number 4. Divide 25 by 5 using the long division method. तो पहला स्टेप क्या हुआ? Arrange the number as shown. Look at this. इस तरीके से पहले आप इसको शो करेंगे. Step 2. Multiplication table tells that there are 5 5s in 25. Multiplication fact में हमने देखा 5 5 में 25 आएगा, तो 5 5s जो होंगे that will be quotient. Now step 3. Product of 5 divisor and 5 quotient is 25. We write the product below our dividend. आप जो डिवाइड करके आया है उसको आप डिविडेंड के नीचे लिखेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट और डिविडेंड को माइनस करेंगे, दैट विल बी 0. तो इसका मतलब 25 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो दैट विल बी आंसर 5. नाउ किड्स, ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5. राइट द क्वेश्चन फॉर ईच लॉन्ग डिवीजन मेथड. जैसे पहला देखें, 28 को डिवाइड करना है 4 से, तो व्हाट यू विल डू, you will read the table of 4 until 28 will not be come. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. Stop on here. हमने देखा 7s are पर 28 आ रहा है, 7 हम यहाँ लिखेंगे, 28 को डिविडेंड के नीचे लिखेंगे. अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, that will become 0. This is the long division method. As it is B देखें, हम 6 का टेबल रीड आउट करेंगे ऑन हेयर. जब तक हमें 54 नहीं मिलता है, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, and 6 8s are 48, 6 9s are 54. Stop on here. हमें 9 पर 50 और मिला है, तो 9 हम ऊपर लिख देंगे, 54 नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 0. So that is the long division method, and quotient is in second 9 and in first is 7. As it is remaining question you will do yourself. Now kids, यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.